we have to do? We have to just verify the equation or identity, that is a into adjoint of a into a equal to determinant a into I. ओके, हमने ऑलरेडी 2x2 के लिए किया था और मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू जस्ट फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. देखिए मैं हर बार यही करूंगी, पहले ट्रांसपोज लिख लेते हैं 4 प्लेसेस पे माइनस. चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 के लिए क्या होगा? 0 माइनस 0. देखिए स्पीड मेरी जितनी है आपको भी वहां तक पहुंचना है. ओके चलिए फॉर -1 9 प्लस 2 11 2 0 माइनस 0 दैट इज 0. 3 के लिए -3, यहाँ पे 0 के लिए 3 माइनस 2 दैट इज 1. यहाँ पे -2 के लिए 0 माइनस माइनस प्लस 1. 1 के लिए 2. For this 0 -2 -6 that is -8. For this 3 0 minus plus 3. So guys this is your adjoint of a transpose. अब मुझे कन्वर्ट करना है 0 -11 0. मैं क्या कर रही हूँ? ट्रांसपोज ले रही हूँ. I am converting the all the rows into corresponding columns. This is 3 1 -1 2 minus plus 8 and this is 3. Okay guys, यही है. चेक किया. This is my a into. Now I am going to check a into adjoint of a. We have to write a -1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 into 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3. Okay. 0 plus 11 plus 0. So this is your multiplication. 0 plus 11 plus 0. First row, first column. Now first row 3 minus 1. 3 minus 1 2 minus 2 2 minus 2 that is 0. चलिए यहाँ पे फिर से 2 -8 मतलब -6 and plus 6. So again it is 0. Okay. 0 0 0. Fine. 9 0 plus 2. 9 plus 2 11. Okay. That is supposed to be 11i. 6 0 plus 6 -6. So again 0. Third row, first column 0 0 0. Okay. 3 0 minus 3 0 2 0 9. 2 plus 9 that is 11. Okay, so I can say this is your 11 into I 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, 11 may be your determinant A. We can check it in the last. This is your LHS. Now LHS नहीं लिख सकते, sorry. We cannot write LHS because there is 3 terms. Adjoint of A into A. What is adjoint of A into A? अब उल्टा करना है. 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 into 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3. Now we are going to do adjoint of A into A. क्या होगा? देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे करना है? दिस इज योर A11. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 plus 9 plus 2 again 0 plus 9 plus 2. So that is also 11. चलिए यहाँ पे चेक करते हैं 0 0 0. क्या किया? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -6 plus 6. So that will be 0 -11 plus 3 plus 8 0
-11 प्लस 3 मतलब -8 प्लस 8 0, माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 0 प्लस 8, देखिए सो दैट इज ऑल्सो 11. अगेन सेकेंड रो थर्ड कॉलम -22 -2 प्लस 24, देखिए 8 3 जा 24, -22 -2 प्लस 24 सेकेंड रो थर्ड कॉलम. सो अगेन योर आंसर इज 0. चलिए यहाँ पे करते हैं 0 -3 प्लस 3, देखिए 0 -3 प्लस 3 क्या किया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, इट विल बी अ 0, 0 प्लस 2 प्लस 9, देखिए दिस इज अगेन 11. सो both are same, both values are same. Now it's time to check determinant A into I. चलिए, what is determinant A? I have to convert it into determinant 3 0 minus 2 1 0 3. Okay, and I मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1. What is I? What is identity element? Your main principal diagonal. All elements are 1 except all are 0. ठीक है, रिमेनिंग ऑल आर 0. चलिए यहाँ पे देखिए मैं कॉलम 2 का यूज कर रही हूँ, देयर विल बी 2 0. तो क्या होगा, व्हाट इज माय साइन, यहाँ पे लीडर वैल्यू है सो माइनस, बाकी दो की वैल्यू तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, दे बोथ आर मल्टीप्लाई विद 0. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज द मल्टीप्लायर्स, 3 into 3 9 प्लस 2 इंटू आई तो है ही. चलिए तो यहाँ पे मैं आई लिख लेती हूँ, सो दैट विल बी 11i. यहाँ पे भी आई कैन से 11i, हियर ऑल्सो आई कैन से 11 into I. Therefore by 1 2 and 3 क्या लिख सकते हैं, by 1 2 and 3 A into adjoint of A equal to adjoint of A into A equal to determinant A into I. Got it guys? Any doubt? No. Okay, fine. Start करते हैं आगे. Find the inverse of each of the following matrices if exist. मतलब हमें पहले चेक करना है inverse is possible or not. 11 सम तक हमें inverse find करना है. Okay. A equal to 2 minus 2 4 3. चलिए first of all we have to find what is determinant A, then after we can go further inverse is possible or not. चलिए what is the value here? चलिए पहला है तो मैं लिख लेती हूँ like this. अब क्या करेंगे, principal diagonal 2 into 3 that is 6, minus minus plus 4 into 8, so answer is 14. so आपका जो डिनोमिनेटर में है वो 14 आएगा. now adjoint of A, हर्षल what is adjoint of A for 2 by 2? क्या करेंगे, 3 minus 4 2 2. okay 3 minus 4 2 2. यहाँ पे लिखूं कि यहाँ पे लिखूं, ऊपर ऊपर की साइड में -4. यहाँ पे -4 2 2 2 2 रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग. बाय 3 2 minus 4 2. क्या होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल आपको लिखना भी ऐसे ही है, हर एक बार आपको ऐसे ही लिखना है. 2 by 2 है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स चेंज,
सेकेंडरी डायगोनल में ओनली साइंस आर गोइंग टू चेंज, -4 and 2. ये ऑल्टरनेट नहीं करना है, डू नॉट फॉरगेट दैट. प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज होंगे, सेकेंडरी डायगोनल विल रिमेन सेम, सिर्फ साइन ऑपोजिट्स होगी. ओके Yes. चलिए. Yes, ma'am. Okay. What is A inverse? A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint of A. 1 upon determinant A मतलब 14, यहाँ पे होगा 3, 2, -4, 2. Okay. So this is your answer. Okay. This is your A inverse. अगर आप करना चाहो so you can do like this also. कि 3/14, यहाँ पे होगा 1/7, this is -2/7 and this is 1/7. You can write like this also or this also, चलेगा, दोनों में से कोई भी. Okay, number 6. A equal to -15 -32. चलिए अब फटाफट से डिटर्मिनेंट ए क्या मिलेगा, -2 -+ 15, so that is 13. adjoint of A, what is adjoint of A? यहाँ पे प्लेस चेंज, यहाँ पे साइंस चेंज हो गई. देखिए माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस. ओके, ये मैं थोड़ा सा दूर लिख लेती हूँ. दिस इज -5. So this is my adjoint of A. Therefore, A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint of A. Determinant की वैल्यू 13 है. Okay, यहाँ पे एक चीज और लिखनी है, is not equal to 0. This implies A inverse exist, क्योंकि आपको बोला है कि if exist. यहाँ पे भी लिखेंगे not equal to 0. Therefore, A inverse exist. Okay, चलिए अब adjoint of A क्या होगा, 2 -5 3 -1. अब यहाँ पे 13 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, so keep it as it is. This is your answer. This is your answer. Okay. चलिए नंबर 7. नंबर 7 में अब 3/3 है. अब मजा आएगा. अब फटाफट से आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करके रखना है. मैं किसी को भी पूछूंगी, यू हैव टू आंसर 0 0 5. चलिए पहले तो काउंट करते हैं व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए. अब यहाँ पे लास्ट रो जो है वहां पे 2 zeros आर देयर. सो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, आई विल डू एक्सपेंशन बाय दिस रो. क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस ही है तो यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिख लेते हैं. व्हाट इज द मल्टीपल 2 - 0, सो 10. It is not equal to 0. This implies A inverse exist. Then, up adjoint of A. First thing I have to do is transpose minus, minus, minus and minus. चलिए फटाफट से. अब what is the multiple of 1? हर्षल, What is the multiple of 1? फटाफट से. चलिए सब अनम्यूट कर दीजिए अभी के लिए. मल्टीपल ऑफ 1 5 5 into 2 क्या होगा, 10. 10. I want फाइनल आंसर. चलिए फिर से, what is the multiple of 2? 0. सिंपल. फटाक से मुझे इन विथिन 2 सेकेंड आंसर चाहिए. चलिए 3 के लिए 2 0 0 0. यस विशाल, नेक्स्ट रो फॉर 0. 0 0 के लिए 0 भाई. सॉरी कितना होगा, जल्दी जल्दी. 10. 10. ओके, 10 या -10? 10. चलिए 2 फॉर 2 कितना होगा, 5 5 - 0. 5. ओके, 4 के लिए
0. ओके भव्या, लास्ट रो आपकी, चलिए बोलिए फटाफट से. 2. 8 minus 6 2. फाइन. चलिए 0 के लिए 4. क्या होगा? 4 minus 0 4. 5. 2. Yes. Okay, fine. चलिए, so this is not my adjoint of A. Now convert row into column. 10 0 0 minus 10 5 0 and 2 minus 4 2. This is my adjoint of A. Now अगर यहाँ पे नहीं करना है तो यू कैन डू डायरेक्टली हियर ऑल्सो. जब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तब भी आप ट्रांसपोज कन्वर्ट कर सकते हो. 1/10 adjoint of A 10 minus 10 2 0 5 minus 4 and 0 0 2. Guys, this is your A inverse. हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं because all are multiples. 1 minus 1 1/5 0 1/2 minus 2/5 and 0 0 1/5. This is my A inverse. This is my A inverse. Okay? चलिए अभी भी स्पीड थोड़ी इंक्रीज करने की जरूरत है. Let's start first कि इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट. मतलब हमें चेक करना है व्हाट इज determinant A. I am using obviously first row because there is 2 zeros are there. क्या होगा? 1. देखिए -3 minus 0. Yes. So answer is -3. नेगेटिव है, no problem. लेकिन it is not equal to 0. This implies A inverse exist. Okay. चलिए अब फटाफट से adjoint of A फाइंड करते हैं. ट्रांसपोज हो गया. All 4 places minus. Now let's start 1 for 1 3 minus 3 minus 0. So this is minus 3 for 0 minus 3 again minus 0. So again minus 3 0 3 2s are 6 6 minus 15 minus 9 for 3. देखिए 0 minus 0. This 3 minus 1 minus 0. So answer is minus 1 for this 0. 2 minus 0. For 5 0 minus 0. 2 0 again minus 0. And for minus 1 3 minus 0. So that is 3. ओके अब देखिए डायरेक्टली मैं लिख लूंगी. यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज अभी कन्वर्ट नहीं किया है. व्हाट इज माय फॉर्मूला? डिटरमिनेंट A into adjoint of A 1/-3 into ट्रांसपोज कर लेते हैं -3 + 3 -9 0 -1 -2 0 0 3. अब आपको करना है डिवाइड 3 से, कर लो. माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, कर लो. मैं क्या कर रही हूँ? 3 से डिवाइड भी कर रही हूँ. सो माइनस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा. दिस इज नेगेटिव. माइनस माइनस प्लस. यहाँ पे 3 0 1/3 2/3 0 0 -1. दिस इज माई A इनवर्स. दिस इज माई आंसर. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 9. अब 9 वाला करवा रही हूँ, 10 वाला आपको खुद करना है. 11 फिर से करवाऊंगी. A 2 1 3 4 -1 0 and -7 2 1. डिटर्मिनेंट A. चलिए 2 -1. ये -1 के लिए क्या मिलेगा? 4. अगर मैं फर्स्ट रो का यूज कर रही हूँ ना तो मेरे फर्स्ट 3 एलिमेंट वहीं से मिल जाएंगे. देखिए 3 के लिए 8 -7 दैट इज 1. सो -2 -4 +3. सो दिस इज बेसिकली -3 नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट. अब एडजॉइंट ऑफ A. व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ A? चलिए देखिए
2, 1 एंड 3 के मल्टीपल यहीं पे है, वो एकदम ध्यान से करो तो ये डेफिनेटली मिल जाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे -1 था, 1 के लिए 4, 3 के लिए 8 माइनस 7। देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, अगेन वी मल्टीप्लाई विथ माइनस, सो दैट इज -8 माइनस 7 दैट इज 1। चलिए 4 के लिए व्हाट इज द आंसर? 1 माइनस 6 -5। चलिए -1 के लिए भव्या 23 23, 2 plus 21, yes 23 for 0 11 11, 4 plus 7 11, okay। -7 के लिए हर्षल 0 plus 3 0 plus 3 that is 3 for 2 Prushti 0 क्या होगा बेटा? 0 plus 12 0 minus 12 माइनस होगा ना बिटवीन, ओके। चलिए 1 के लिए क्या होगा? -2 minus 4 that is -6, -2 minus 4 that is -6। so what is my inverse? A inverse is equal to 1 upon determinant A। don't forget to write this formula। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो गई तो आपको फॉर्मूला का मार्क डेफिनेटली मिलेगा। ये जो आपने काउंट किया है उसका भी मार्क मिलेगा। तो मतलब अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क यहाँ से, हाफ मार्क फॉर्मूला का मिल जाएगा। तो बाई चांस अगर गलती हो गई तो 1 मार्क कट होगा। अगर ये दोनों आप नहीं लिख रहे हो, डायरेक्ट ही फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हो, तो आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग है। ये तो हमें काउंट डेफिनेटली करना है। -3, अब क्या कर रही हूँ? कन्वर्ट कर रही हूँ रो में, रो को कॉलम में, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 6, ओके। चलिए ऑल आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सो कीप इट एज इट इज। अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है यू कैन डू, अदरवाइज लीव इट एज इट इज, वो भी चलेगा, ओके। सो दिस इज योर A इनवर्स। चलिए एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 you have to do। we are going further to question number 11। again first this is your A। क्या गिवन है? 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha minus cos alpha। देखिए गाइस यहाँ पे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम ले लो टू डू एक्सपांशन, तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। एंड देयर इज सो मैनी जीरोस, 4 0 है क्वेश्चन में, तो ऑलमोस्ट आपका आंसर तो 0 आने वाला है। देखते हैं, चलिए 1 क्या होगा? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर मैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख लूँ, सो दिस इज योर -1 नॉट इक्वल टू 0। अगर माइनस कॉमन निकाले, दैट इज योर आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज 1, ओके। सो बेसिकली -1 आपका आंसर आएगा विच इज नॉट 0, विच इज नॉट 0। तो आपको इजीली A इनवर्स मिलेगा, A इनवर्स एग्जिस्ट, ओके। नाउ एडजॉइंट ऑफ A, आई होप यहीं पे वैल्यू आ जाए। चलिए 1 के लिए क्या आएगा? माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दैट इज -1। फॉर दिस 0 0 माइनस 0, आई थिंक जहाँ पे भी 0 है वहाँ पे तो 0 ही आएंगे। देखिए 0 0। फॉर दिस 0 अगेन 0 इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू साइन अल्फा दैट इज ऑल्सो 0। कॉस अल्फा के लिए माइनस कॉस अल्फा माइनस 0, सो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस अल्फा, ओके। फॉर साइन अल्फा माइनस 0, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस साइन अल्फा। फॉर दिस 0
0 minus 0, again 0 sin alpha, and for minus cos alpha into 0, so यहाँ पे आएगा cos alpha, simple. A inverse 1 upon determinant A into adjoint of A, क्या होगा, -1/1 multiply -1 0 0, I am taking transpose 0 minus cos alpha minus sin alpha, यहाँ पे होगा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. ओके, सिर्फ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज योर ए ओनली. देखिए 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा. मतलब व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट कि अगर यहाँ पे आपका 1 है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर 0, तो क्या होगा, आपका ए ही आपका ए इनवर्स हो जाएगा. यहाँ पे cos अल्फा sin अल्फा गिवन है, अगर यहाँ पे मैं 2 3 4 5 ऐसे भी लिख दूँ देन ऑल्सो इट इज वैलिड, क्योंकि बेसिकली cos अल्फा sin अल्फा है क्या, वैल्यूज है, कॉन्स्टेंट्स है. ठीक है, इफ आई एम पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा, हाँ डेफिनेटली -1 से 1 के बीच में ही आएंगी, लेकिन यू कैन चेक इट फॉर एनी कॉन्स्टेंट्स. सपोज 2 3 4 5 यहाँ पे पुट करते हैं, यू कैन चेक इट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ. देखिए यहाँ पे भी हमने 1 इंटू कॉस अल्फा किया, यहाँ पे 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा किया, वैसे ही आंसर आए. तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होंगे. सो A and A inverse both are same. This implies I can write A inverse is equal to A. Okay? चलिए number 12. Verify that AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. Okay, यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से चेक करना है रिजल्ट जो हमने वहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी के तौर पे लिख लिया था. ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे ट्रांसपोज में ऑर्डर रिवर्स होता है वैसे यहाँ पे भी ऑर्डर रिवर्स होगा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स. व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? ए इक्वल टू 3 7 2 5, बी इक्वल टू 6 8 7 9. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर LHS आई नीड A into B. So what is A into B? 3 7 2 5 into 6 8 7 9. ओके गाइस, चलिए विशाल लिखाओ पहला A11 वाला. व्हाट इज द मेंबर, व्हाट इज द एलिमेंट? विशाल क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या होगा? 18 प्लस मैम 18 प्लस 49. 18 प्लस 49 कितना होगा? 18 प्लस 49 67. 18 प्लस 49 यस 65 होगा बेटा. 18 है ना, हाँ सॉरी 67. चलिए 67 नेक्स्ट होगा. वन 18 प्लस 63, 18 प्लस 63 81, नहीं सॉरी 24 होगा, 8 3 जा 24 प्लस 63 सो 87. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 24 प्लस 63, यहाँ पे 12 प्लस 35 सो 47.
ओके, यहाँ पे सब 7 के डिजिट आ रहे हैं. 10 प्लस 45, 55. नहीं, क्या किया मैंने? 61. 16 प्लस 45. Yes, 61. 61. 61. Yes. Okay. चलिए, so this is my AB, A into B. अब क्या करना है for LHS? मुझे AB इनवर्स फाइंड करना है. AB इनवर्स के लिए I want डिटर्मिनेंट also. हाँ, इतना बड़ा डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? चलिए, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 67 इंटू 61. We can do like this also using elementary operation. मैं क्या कर रही हूँ? रो 2 को रो 1 में चेंज कर रही हूँ. R1 माइनस R2, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 20. 20 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा? 25. राइट? नहीं, 26. ऐसे भी कर सकते हो, Minus अदरवाइज 14. मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. यू हैव कैल्सी अलाउड है बोर्ड्स में, तो नो प्रॉब्लम विद दैट. व्हाट इज द आंसर? चलिए, आंसर फटाफट से बोलिए मुझे, यहाँ से या फिर यहाँ से. फोर 4087. 4087. फाइनल आंसर 4087. No. तो इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस. फाइनल आंसर ना? यस यस. हाँ, ये तो नहीं होगा ना. 61 2 2 132 नो मैम. 1320. 4087 माइनस 4089. ये वाला किया आपने? यस. ओके, चलिए, तो फिर यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ. आंसर इज 2, मतलब में 4087 माइनस 4089 इज इक्वल टू -2, नॉट इक्वल टू 0. ओके, अब ए बी इनवर्स फाइंड करना है. देखिए यहाँ पे 2/2 है, सो वेरी इजी टू गेट. ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी. देखिए, मैं एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं पुट कर दूंगी वैल्यू, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन लंबा होने वाला है. 1 अपॉन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए बी, यहाँ पे सॉरी, डिटर्मिनेंट ए बी -1/2. अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या करेंगे? चेंज 61 67, यहाँ पे साइन चेंज -47 -87. सो गाइस, दिस इज योर ए बी इनवर्स. 2 को एज इट इज रखो, फिर देखते हैं, सोचते हैं. अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे, अदरवाइज लीव इट. चलिए, आरएचएस में मुझे क्या चाहिए? पहले तो बी इनवर्स चाहिए, बी इनवर्स भी चाहिए, ए इनवर्स भी चाहिए. तो पहले ए इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? 15 माइनस 14, सो दैट इज 1, नॉट इक्वल टू 0. सो व्हाट इज ए इनवर्स? अगेन, अब एक बार फॉर्मूला लिख लिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से क्या होगा? चेंज द प्लेस ऑफ मेन डायगोनल. चेंज हो गए, यहाँ पे चेंज करो साइन, -2 -7. सो दिस इज योर ए इनवर्स. ओके, चलिए, बी इनवर्स. पहले तो डिटर्मिनेंट बी फाइंड कर लेते हैं. क्या होगा? 45 माइनस 54 माइनस 56. देन सो -2 नॉट इक्वल टू 0. देखिए, ये वाला तो हो गया हमारा काम. अब व्हाट इज बी इनवर्स? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी, दैट इज -1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी. चेंज करो 9 6 -7 -8. देखिए, अब क्या करना है फॉर आरएचएस? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. आरएचएस B inverse into A inverse. What is B inverse here? -1/2, 9 -8 -7 6.
अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे A इनवर्स में यहाँ पे तो 1 है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सपोज देयर इज अनदर कांस्टेंट तो उसको भी बाहर कॉमन निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन हमें सिर्फ मैट्रिक्स का करना है। -1/2, व्हाट इज द आंसर? 45 प्लस 16, 45 प्लस 16, यस इट इज 61। यहाँ पे होगा -63 -24, यहाँ पे होगा -35 -12, so again -47, and here it is 49 plus 18, 49 plus 18, 67. Okay, so you can check, this is your LHS, this is your RHS. So from 1 and 2, LHS equal to RHS, therefore AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. Okay guys, this is it. चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज का सेशन। वंदे मातरम टू ऑल।